Dr. Aisha. Thank you, Dr. Khan sir, for giving me the opportunity to interact with your people regarding this different topic in a homeopathic pharmacy college, that the job opportunity for the non-clinical sectors in the homeopathic professional, for the homeopathic professionals. So I believe this is a very different topic, and it is something not related to the pharmacy or not related to any drug, but the homeopathic professional has multiple things in their apprehension, lot of apprehension in their mind ki what can be done after the pharmacy college, after completing BHMS, after completing their medical graduation, other than the traditional other than the traditional of homeopathic practice. So we know that there is a multiple things, or the traditional work which is already done, or which is already communicated to the people, that you have to do the practice, you Sir, have to do. sorry to interrupt you, but I am starting to share the PPT. Yeah, sure. Please let me know when to change the slide. Sure, doctor, sure. So this is a different topic in which we will give you the idea regarding other non-clinical sector where homeopathic professional can build their career, can get the opportunity to be participate or to communicate with the government or with the NGOs, with the pharma industry in a different stream, where you don't need to treat the patient, you don't need to give your opportunity, give your best in the clinical side, but there is a multiple other sectors, multiple other form where you can build your career in non-clinical sectors. So I'll give you the brief agenda of today's meeting, and that this webinar will conduct by the Sympathy Institute of Pharmacy, where most of the people are from pharmacy background, and the professionals are from the homeopathic graduation, medical graduation, and some of them are building their career in clinical practice, or some of them maybe has done some different non-clinical work also, and some administrative work also. But the time is where where we have the opportunity to give or to provide the insight to other people, कि there is a lot of things, there is multiple opportunity which is not related to the clinical sector. आपको clinical की जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. You can't go with the traditional things which is already understood by the medical professional, कि आपको प्रैक्टिस ही करना है, आपको क्लिनिकल में ही जाना है. So there is a multiple other diverse career path which we need to understand during this webinar. What is that non-clinical sector like NGO, pharmacy, public health? We heard about these names, but there is a multiple apprehension कि क्या हमारे लिए वो sectors open हैं या वो sector हमारे लिए open नहीं है. तो एक multiple apprehension सारे लोगों के मन में है, homeopathic professionals के मन में है कि क्या homeopathy की opportunity in NGOs में या in फार्मा सेक्टर्स में या वेलनेस सेंटर्स में है भी या नहीं है. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, एंड वी विल गिव यू द इंसाइट कि व्हाई वी पीपल आर गेट टुगेदर हियर टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन क्लिनिकल सेक्टर्स. So Dr. Aisha, next we will go to the next slide. So this is the traditional site where we know कि after homeopathic सब्जेक्ट टू बी कंप्लीटेड, चाहे वो फार्मेसी हो या वो मेडिकल ग्रेजुएशन हो या आपका BHMS MD हो, what is the opportunity for that? We can go for the pharmacy courses, we can go for the lectureship, we can go for the homeopathic doctors, or we can go for the research and advocacy, and for the scientist perspective. So this is a traditional form. Everybody knows that these are the 4-5 things which we have to done, which we have to completed during our after our completing homeopathic profession, after completing our homeopathic degree, चाहे वो pharmacy की degree हो, चाहे वो medical graduation की हो. But now the time is where the government has also accepted homeopathic professionals in many of the sectors, चाहे वो public health का sector हो या वो NGO का sector हो या किसी research advocacy का sector हो. Homeopathic doctors has to be intimated or to be appointed as a legal advisor or as a doctor to be participate in
building non-clinical career in the different zone or different field. Next, doctor. So what is that career path where we can choose or where we can move out for getting more of the opportunity regarding the homeopathy? So one is corporate wellness program. So there is a multiple corporate companies. One of the big opportunity for the corporate wellness program is that homeopathic doctor has been appointed in the most of the corporate for their stress management, for their well-being, for their काउंसलिंग पर्सपेक्टिव. सो दिस इज एन वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर द होम्योपैथिक प्रोफेशनल कि वो किसी कॉर्पोरेट में जाकर के भी एक वेलनेस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर की तरह से भी एक्ट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं अपने आप को. फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी वेल कम्युनिकेटेड, गुड कम्युनिकेशन स्किल सेट, एंड सेकेंडली you have to be more intellectually drive the medical subjects. You not need to be more focused on or only on the organon or pharma or materia medica. You have to be more focused on the PM, practice of medicine also. So this is the one of the factor, one of the field where you can approach, you can analyze your existence on the corporate wellness program. Second is product development. So we have to be more focused on the homeopathic principles. So there is a multiple insurance company, multiple technology company where they are building their software on the medical science. So the homeopathic doctors or Ayurvedic or any of the alternative pathy doctors can be communicated, can be incorporated in the product development, where they can use their expertise of medical science in development of software or any of the product or any of the health product also. So there is a two-way. One is you have to be focused on the technical side, or you can be focused on the health product side. So you can build your career in developing new health products, or you can build your career in new software. जैसे अभी I think आप लोग aware है या नहीं, अभी I heard 1 week before कि किसी होम्योपैथिक कपल ने होम्यो चैट करके एक AI टूल बनाया है. आप होम्यो चैट के नाम से अगर कभी भी गूगल पे करके देखेंगे तो देयर इज द 2 होम्योपैथिक मतलब होम्योपैथिक कपल ने जिन्होंने एक चैट बनाया, AI चैट, जिसकी वजह से उन्होंने, जिसमें आप होम्योपैथिक की कोई भी सिम्टम या कोई भी बीमारी आप डालो एंड दे विल गिव यू द they will share you the detail of your medicine or something else. It is just like ChatGPT सभी ने I think सुना होगा. And somebody has raised the hand. So Dr. Aisha, we should take the question at the end, or we can take the question in between. Aisha, Dr. Aisha, mute पर हो. Dr. Arvind, at the end of the session, we will take the questions. Okay, ठीक है. Okay, so this is a second thought, that product development, and third is research and advocacy. Everybody knows that we have a very good or vast experience or vast opportunity for the research and advocacy. So there is no need to give you the brief about the research and advocacy. And then the education program. So we have a lot of opportunity for the education. There is a small workshop or something which is related to medical graduation. You can incorporate it the same with the NGOs or in the wellness center and give your idea, give your medical view to the people or to the public regarding the education or the awareness of the homeopathy. So this is one of the other sector where education can be provided to the other people or the non-homeopathic professional by you, and you can be increase or you can be build your career in the non-clinical sector on that way. So next, Dr. Aisha. As I have already told you that so I'll give you the brief on 2 or 3 sectors today. One is on the wellness center, one on the insurance sector, and opportunity in NGOs or in the public health. So these are the 2-3 sectors in which I'll give you the idea how to build your career in a non-clinical sector. So one is wellness industry. अभी आज की तारीख में आयुष्मान भारत के अंदर भी wellness center जगह जगह खोले जा रहे हैं, पूरे भारत देश में खोले जा रहे हैं, जहां पर कि आयुष डॉक्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है विद द
help of government of India ki they can set up or they can run their wellness center for the public well-being. So one of the factor, one of the important point is कि आप सभी उन सारे सेंटर्स में जाकर के अपने लिए अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें और वहां पर अप्लाई करें, एंड यू विल गेट द जॉब और यू विल गेट द benefit from the wellness industry. Apart from that, you can also explore the opportunity in many of the spa center, in the wellness center, where the homeopathic prescription is required for those people who comes for that industry. You can offer your opportunity to the health food stores. आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे फूड स्टोर्स हैं, जैसे एमवे, आपने सभी ने एमवे का नाम सुना होगा, आपने सभी ने मोदी केयर का नाम सुना होगा. देयर इज अ मल्टीपल अदर फूड चेन, जहां पर जैसे पतंजलि का नाम आपने काफी सारा सुना होगा, जिसके ढेर सारे फूड स्टोर्स बने हुए हैं. उन सारे फूड स्टोर्स में सिमिलरली होम्योपैथी के भी फूड स्टोर्स हैं, जहां पर कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड यू कैन गो विद द consultation and the product development also in their food stores. Yoga and medication studios, definitely homeopathic doctor or any of the Ayush doctor can get the opportunity in yoga and medication studio. But before that, you need to take a course or something regarding the yoga, because आज की तारीख में आप अगर किसी स्टूडियो को ज्वाइन करते हो, देन alone a homeopathy sector or alone a homeopathy degree is maybe they have some reservation for the yoga center. But if you have some yoga degree or you have some yoga courses also completed, then you can easily open your yoga center, or you can take the job in yoga or in the medication studio. So your homeopathic degree, whatever it is, pharma or medical graduation, along with your expertise, it will give you the enhancement in your career other than the clinical sectors. Dr. Aisha, next. I have already give you this brief regarding homeopathic educator and trainers. So it is one of the opportunity that आप होम्योपैथी के बारे में लोगों को बताने के लिए, आप उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और यू कैन बी अ ट्रेनर इन मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनी. आज की तारीख में क्या है कि कई सारी कॉर्पोरेट कंपनियां एक एक मेडिकल ग्रेजुएशन को अपने यहाँ रखती हैं फॉर द वेलनेस, क्योंकि इतना ज्यादा कॉर्पोरेट में स्ट्रेस है, इतना ज्यादा कॉर्पोरेट में काउंसलिंग की जरूरत है. सो दे कीप वन ऑफ द होम्योपैथिक डॉक्टर, वन ऑफ द आयुष डॉक्टर और एनी ऑफ द एमबीबीएस डॉक्टर, they can keep that doctor in their company to give the regular counseling to the people, regular education to the people regarding their health. उनकी हेल्थ में क्या कमी है, हेल्थ में क्या चीज सही है, हेल्थ में क्या चीज खराब है, उन सारी चीजों को वेलबींग के लिए जितनी भी अच्छी और बड़ी कंपनियां, एंड दे पे वेरी गुड, they are very good in they are very good paymaster also for that courses. So if you can also find some opportunity in that companies also. So I'll give you the idea where or how we can take this leverage in the next slide. This is the homeopathic product development and marketing. I have already give you the brief regarding product development and marketing. कि आपको जब देयर इज लॉट ऑफ फार्मेसी कंपनी, चाहे वो SBL हो, WSI हो, और सारी कंपनियां जिनमें कि रेगुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चलता रहता है. सो homeopathic pharmacist, especially homeopathic pharmacy graduate, have a very good opportunity in the research development and product testing and validation, and then they can go for the marketing and branding also. So यहाँ पर कोई क्लिनिकल काम नहीं करना आपको. You have to identify the opportunity in research and development. दवा की पोटेंसी चेक करना, दवा के बारे में बताना, एंड दवा की ब्रांडिंग करना, चाहे वो मल्टी पॉलीफार्मेसी से रिलेटेड हो या वो पेटेंट हो कोई, उन सारी चीजों को बनाना और उनकी ब्रांडिंग करना. इट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट और बिग पोर्टफोलियो राइट नाउ फॉर द होम्योपैथिक ग्रेजुएशन. क्योंकि आज की तारीख में धीरे धीरे करके क्या है कि मेडिकल ग्रेजुएशन की तरफ, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से लोग आयुर्वेद की तरफ, होम्योपैथी की तरफ, आयुष ट्रीटमेंट की तरफ धीरे धीरे करके अपना पाथ आगे बढ़ा रहे हैं. उसी क्रम में, उसी पर्सपेक्टिव में अभी क्या है कि आपको बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, बहुत ज्यादा उसमें मार्केटिंग की जरूरत है. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द फार्मेसी ग्रेजुएट for their non-clinical career. Yeah, doctor. Now I'm coming to the public health.
So I believe everybody has some idea about this public health. Anybody who is available in this webinar, do you have any idea what is the public health? Sir, Okay. all participants are muted, so they can't reply you, na? So Okay, okay. the interaction section will be in the last of the session. Okay, okay. So I'll give you the brief about the public health. Public health is a basically art and science of preventing disease. अगर हम किसी भी नॉर्मल भाषा में बात करें तो पब्लिक हेल्थ का फंक्शन सिर्फ इतना है कि जितनी भी आपकी एक पब्लिक की हेल्थ की प्रिवेंशन करने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, दिस ऑल कम अंडर द पब्लिक हेल्थ, और इट इज अ वेरी बिग पोर्टफोलियो फॉर ऑल द होम्योपैथिक मेडिकल ग्रेजुएट. The course which we can done on this public health is MPH, Master in Public Health. आज की तारीख में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, यूपीएससी. सो दैट यूपीएससी के एग्जाम ने भी पब्लिक हेल्थ का एक अलग से कैडर तैयार किया है. उस कैडर में हम लोग यानी कि होम्योपैथिक ग्रेजुएट, आयुर्वेदिक ग्रेजुएट और मेडिकल ग्रेजुएट कैन गो एंड दे गिव द एग्जाम फॉर द पब्लिक हेल्थ ऑल्सो. सो पब्लिक हेल्थ का अपने आप में एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, एक बहुत वास्ट आपका सेक्टर है जो कि ग्रो कर रहा है, एंड वी हैव टू बी फोकस मोर ऑन द public health. So after medical graduation you can build your career in public health also. So as a definition I can tell you, the art and science of preventing disease, prolonged life and promoting health through the organized effort of society, of the organization or the company. We can say if we are putting extra effort or combined effort to preventing of the any disease, it will comes under the umbrella of public health. Yeah, doctor. Next. So what is the goals and objective of the public health? So here I want to give you the brief regarding public health. What is the goals and objective? Goals and objectives are health of the community को monitor करना है. Secondly, हेल्थ ऑफ द जितनी लोकल प्रॉब्लम्स हैं या चाहे वो एपिडेमियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है. दिस इज द बेस्ट ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ द पब्लिक हेल्थ. ये तो पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से है. एंड सेकेंडली मैंने आपको बताया कि यू हैव टू बी मोर फोकस ऑन द कोर्स. द कोर्स इज MPH. देयर इज अ मल्टीपल कोर्स लाइक MPH एंड पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी. NIHFW से भी कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि पब्लिक हेल्थ में किए जाते हैं. लोग अगर मेडिकल ग्रेजुएशन जो भी हैं यहाँ पर होम्योपैथिक ग्रेजुएट, दे कैन गो फॉर द साइट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर NIHFW, जहाँ पर आपको इसके काफी सारे कोर्सेज मिलेंगे एंड यू कैन बिल्ड योर करियर इन MPH और इन द पब्लिक हेल्थ ऑल्सो. नेक्स्ट. Now I am giving a brief and very detailed idea about the insurance, health insurance overview, and there is a multiple opportunity for all the pharmacy or medical graduate in the health insurance. So I think all of you are, I know that you are on mute, but I believe that you know the reason or you know what is the insurance also. इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको एक बारी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव में हम एक प्रीमियम देते हैं. उस प्रीमियम के बेसिस पर अगर जब भी कभी हम बीमार पड़ते हैं या हमारे को कोई सर्जरी की या किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो वो कंपनियां हमें उस पूल में से, उस प्रीमियम के पूल में से पेमेंट करती हैं. सो दैट दिस इज कॉल्ड द हेल्थ इंश्योरेंस. एंड दिस इज सेम फॉर द फायर, फॉर मोटर, फॉर एवरीबडी, for everything which we want to insure that one. But in medical insurance there is a lot of opportunity for the medical graduation, for medical graduate, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक हो, या वो मेडिकल ग्रेजुएट हो, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स हो. सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इन हेल्थ इंश्योरेंस? आप उसमें क्लेम के पर्सपेक्टिव से अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी मेडिकल ग्रेजुएशन और अपनी मेडिकल नॉलेज को मदद ले सकते हैं, नेटवर्किंग करने के लिए ले सकते हैं,
इन्वेस्टिगेशन और फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से आप इंश्योरेंस में अपना करियर बना सकते हैं. सो दीज आर द और अंडरराइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपनी मतलब अपने करियर को आगे बिल्ड कर सकते हैं. सो दिस इज द वन ऑफ द बिग सेक्टर जहां पर कि मेडिकल ग्रेजुएट और फार्मेसी ग्रेजुएट की बहुत ज्यादा जरूरत है. आगे आने वाले नेक्स्ट 5 years में ऑलमोस्ट 2 to 5 million ऑफ मेडिकल ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी फॉर दिस इंश्योरेंस सेक्टर. नेक्स्ट डॉक्टर. अभी जरूरत है थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानने की कि उसमें कौन कौन से प्लान्स होते हैं, किन तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर्स में हमें काम करना है. उसमें से एक होता है आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड प्लान. एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आप किसी जगह पर जॉब में काम कर रहे हो, तो वो कॉर्पोरेट कंपनियां आपको एक पर्टिकुलर प्लान प्रोवाइड कराती हैं. वो प्लान जो होते हैं वो कंप्लीटली कस्टमाइज होते हैं, उनमें सारी बीमारियां कवर होती हैं. उनमें किसी भी ऐसी बीमारी का कुछ आई मीन ये नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर बीमारी के ही लिए इलाज मिलेगा या उस बीमारी के लिए इलाज नहीं मिलेगा. तो ये सारे प्लान जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड प्लान. इंडिविजुअल प्लान्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल प्लान्स वो हैं जिनको कि आप अपने लेवल पर खरीदते हो, अपने पैसों से, इंडिविजुअल पैसों से आप उनको लेते हो मार्केट से, और उनमें कुछ बीमारियां कवर होती हैं, कुछ बीमारियां 2 या 3 साल के बाद कवर होती हैं. सो दीज आर द इंडिविजुअल प्लान्स. गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्लान क्या होते हैं? गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्लान जैसे आजकल आपने आयुष्मान भारत का नाम सुना होगा. आयुष्मान भारत एक आज की तारीख में ऐसा प्लान है दैट इज बिल्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड इसका प्रीमियम या जिसकी जो भी खर्चा है वो सारा का सारा भारत सरकार या राज्य सरकारें उठाती हैं. तो वो सारे प्लान्स कहलाते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्लान, जो कि छोटी आई मीन SECC डेटा में जो गरीब पॉपुलेशन है 50 करोड़ की, उनके लिए इसको फिलहाल के लिए स्पॉन्सर्ड किया गया है या उनको दिया गया है. फोर्थ प्लान होते हैं हाई डिडक्टेबल हेल्थ प्लान्स. ये वो प्लान्स होते हैं जिनमें कि आप कुछ पॉलिसीज को खरीदते हो कम अमाउंट पर, लेकिन उनमें कुछ अमाउंट आपका ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग का अमाउंट अपनी पॉकेट से पे करना होगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्लान आपको कंपनी पे करेगी या आपको रेस्ट ऑफ द प्लान आपका इंश्योर्ड होगा. सो ये हमारे ब्रॉडली 3-4 इंश्योरेंस प्लान्स हैं जिन पर की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री काम करती है. नेक्स्ट. अभी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा क्लेम के बारे में समझना, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पर मेडिकल ग्रेजुएट बैठे हैं या जितने भी फार्मेसी ग्रेजुएट बैठे हैं, उनको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए. तो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लेम को जानना कि ये क्लेम होता कैसे है. एक पर्टिकुलर किसी भी कंपनी में, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में सबसे पहले एक क्लेम फॉर्म होगा. उस क्लेम फॉर्म को फिल करेंगे. उस क्लेम फॉर्म को फिल करने के बाद वो अप्रूवल के लिए कंपनी में जाता है. अब जब कंपनी में जाता है तो कंपनी में देयर इज अ मल्टीपल डॉक्टर्स, चाहे वो आयुर्वेद के डॉक्टर हो, चाहे वो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हो, चाहे वो अदर डॉक्टर्स हो, दे पीपल आर सिटिंग देयर, और वो सारे लोग जो है आपके क्लेम अप्रूव करते हैं. तो आपकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर, वेयर यू हैव टू अप्रूव द क्लेम. सो क्लेम अप्रूवल इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर, बिगेस्ट नॉन क्लिनिकल सेक्टर फॉर ऑल द होम्योपैथिक प्रोफेशनल्स. आगे क्लेम को बारे में समझना है तो उनको क्लेम को चेक करते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं. अगर वो क्लेम्स ठीक नहीं है या उन क्लेम्स में अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आपके रिजेक्शन का कारण बन सकती है, तो उनको वो रिजेक्ट करते हैं. दैट इज द क्लेम डिनायल प्रोसेस. सो द 2 or 3 फैक्टर्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लेम पर्सपेक्टिव. वन इज क्लेम फिलिंग, जो इंश्योर्ड करता है जिसने पॉलिसी खरीदी है. क्लेम अप्रूवल, जहां पर आप लोग बैठे होगे या इंश्योरेंस कंपनी में बैठे होगे, जो भी आपके प्रोफेशनल्स हैं या जो भी मेडिकल ग्रेजुएट हैं, जो क्लेम अप्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मेडिकल नॉलेज, और वो अप्रूव कर सकते हैं और डिनाई कर सकते हैं. सो द अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस और अपॉर्चुनिटी फॉर द करियर इज हेल्थ क्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम. नेक्स्ट. सो अभी क्वेश्चन एक दिमाग में ये आता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, उन सबकी इंश्योरेंस में क्लेम में क्या आवश्यकता है. सो मैं 1-2 चीजें इस जगह पर बताऊंगा. वन इज
आपका आयुष ट्रीटमेंट भी आपकी इंश्योर्ड पॉलिसीज में कवर होता है, जहां पर आपकी अपॉर्चुनिटी और आपकी जरूरत है, जहां पर आप अपने ओपिनियन दे सकते हो। एंड सेकेंडली, आप सभी ने मेडिकल ग्रेजुएशन में या फार्मेसी ग्रेजुएशन में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सम एक्सटेंट आपने मेडिकल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सभी ने पढ़ी हुई है। एंड एवरीबडी हैज अ नॉलेज ऑफ डायग्नोसिस, एवरीवन हैज अ नॉलेज ऑफ डिजीज. So your opportunity for the insurance or in the non-clinical sector is very vast. So never think in your mind कि हमारी opportunity वहाँ होगी नहीं होगी या कोई है या नहीं है. So I'll give you the assurance कि insurance sector के अंदर आयुर्वेद या आयुष डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट और सबसे ज्यादा उनका करियर ग्रोथ है. सभी को ऑलमोस्ट दे कैन गेट पैकेज ऑफ 8 lakh to 15 or 16 lakh at the initial stage, और वो अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने करियर को वहां पर आराम से ग्रो कर सकते हैं. अभी मेरे को बताना है आपको आयुर्वेदिक, सिद्धा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में. तो हर इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आयुष ट्रीटमेंट को कवर करता है विद सर्टेन लिमिट. कहीं पर 25,000, कहीं पर 50,000, कहीं पर कुछ और सम इंश्योर्ड के इक्विवेलेंट भी. सो वहां पर आपके आयुर्वेद के लिए हो या होम्योपैथी के लिए हो, दोनों ही तरीके के डॉक्टर्स के लिए आपकी कंप्लीट अपॉर्चुनिटी है. एंड यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ इन द नॉन क्लिनिकल सेक्टर लाइक इंश्योरेंस. नेक्स्ट. अभी आयुष को हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड कैसे किया गया है और आपको उसमें जानना कितना है. अभी क्या है कि आपको आयुष ट्रीटमेंट के बारे में सिर्फ इतना पता है कि हाँ आयुष ट्रीटमेंट हमारा है वहां पर, और उस आयुष ट्रीटमेंट में हमारी कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी है. बट आयुष ट्रीटमेंट को आपने एक कस्टमर की तरह से उसको समझने की जरूरत है कि आयुष ट्रीटमेंट आपका कहाँ और कितना मौजूद है. पहले तो आपको जरूरत है उसका कवरेज को समझने की, जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी इंश्योरेंस कंपनी में या किसी प्रोडक्ट को 25,000 तक कवर किया गया है, कहीं 50,000 तक कवर किया गया है, कहीं कुछ कम किया गया है, कहीं कुछ ज्यादा किया गया है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कवरेज ऑफ that insurance product, that what amount or what is the value that been covered under your health insurance. सेकेंडली, आयुष का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंटिव केयर के लिए, तो जितनी भी आपकी आयुष थेरेपीज हैं वो एज ए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अप्रोच यूज करी जाती हैं. एंड पॉलिसी होल्डर्स जितने भी हैं उनको एक प्रोडक्ट के साथ में एक वेलनेस और एक प्रिवेंटिव पैकेज दिया गया है, जिसमें कि आयुष ट्रीटमेंट और आयुष थेरेपीज, चाहे वो आयुर्वेद की थेरेपीज हो, चाहे वो आपकी पंचकर्मा आयुर्वेद की थेरेपी हो या आपकी होम्योपैथी के ट्रीटमेंट्स हो, वो सारे एज ए प्रिवेंटिव वहां पर यूज किए जाते हैं. एंड यू ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट थेरेपीज. अभी आप जब वहां पर बैठे होगे तो आप उसको चेक करोगे कि वेदर दिस थेरेपी इज रिक्वायर्ड और नॉट. अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट करोगे, आप उसको पे करोगे. सो दीज काइंड ऑफ फैसले, दीज काइंड ऑफ डिसीजन you need to take. So this is the one of the opportunity for the homeopathic doctors. Now next is the holistic approach. आयुष ट्रीटमेंट आपका सभी को पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए आयुष ट्रीटमेंट को हम हमेशा यूज करते हैं, जो कि आपकी बॉडी को, माइंड को एंड सोल और ऑल 3 फैक्टर्स को कवर करते हुए ही, उस अप्रोच को लेते हुए ही हमारे को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है. सो आयुष ट्रीटमेंट का हेल्थ इंश्योरेंस से कवर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड फोर्थ इज कॉस्ट सेविंग. तो हमें पता ही है कि आजकल जो मेडिकल ग्रेजुएशन है, अब जो मेडिकल का ट्रीटमेंट है, चाहे किसी भी अस्पताल का ट्रीटमेंट हो, ऑलमोस्ट दे आर वेरी हाई. सो अगर आपको नॉर्मल कहीं बुखार भी होता है तो आप 1 लाख रुपए से कम का बिल नहीं बनता है. बट अगर आपको आयुष ट्रीटमेंट या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो कि अल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा दिया जाता है, उसमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता और पेशेंट को भी उतना ही और बहुत जल्दी ही आराम मिल जाता है. इसमें मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा बिकॉज एवरीबडी इज एन होम्योपैथिक प्रोफेशनल एंड नोज कि हाउ मच वी हैव अ कैपेबिलिटी टू capability to cure the patient on the acute or in some chronic conditions without wasting money, without wasting time. Yeah, next doctor. अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी हमारा सारा फोकस अभी हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ ही है. हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना, हेल्थ बेनिफिट को समझना. अभी तक हमने समझा कि हेल्थ इंश्योरेंस में आयुष की क्या क्या भूमिका है, आयुष ट्रीटमेंट को हम कैसे कवर करते हैं,
अब हमारा पॉइंट ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट में हम हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट को आयुष में कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए सबसे पहले जरूरी है पॉलिसी को पढ़ना ढंग से। आप पॉलिसी को कायदे से पढ़ेंगे तो आपको उसके सारे लूपहोल समझ में आ जाएंगे। आपको हमेशा ट्रीटमेंट यूज करने के लिए, आपको कहीं पे कोई ट्रीटमेंट लेना है, देन यू नीड टू फोकस मोर ऑन द नेटवर्क, जो भी आपके प्रोवाइडर नेटवर्क आपको मिलते हैं। और इस नेटवर्क प्रोवाइडर को भी डील करने के लिए डॉक्टर्स की जरूरत होती है। उन प्रोवाइडर्स को डील करने के लिए होम्योपैथिक एंड आयुष प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है। सो देयर इज एन अगेन अपॉर्चुनिटी एरिया। सेकंड इज एडवांटेज ऑफ द प्रिवेंटिव केयर। आप प्रिवेंटिव केयर को के तौर पर आयुष ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द मैक्सिमाइज बेनिफिट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। एंड आपको ड्रग कवरेज जरूरी है कि आप उसी के अकॉर्डिंग अपना रिव्यू योर प्लान्स फॉर्मुलेटेड टू फाइंड आउट विच मेडिकेशन आर कवर्ड, हाउ मच यू फील। सो अगर आप जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर की तरह से किसी कंपनी में बैठते हो फॉर द क्लेम बेनिफिट चेक करने के लिए, देन यू हैव टू बी आइडिया कि इस दवा का यूज किस बीमारी में है, इस दवा का यूज किस बीमारी में नहीं है। अगर कोई उस बीमारी में उस सर्टेन हाई यूटिलाइज ड्रग को यूज करता है, देन यू कैन आइडेंटिफाई और आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट और रिक्वायरमेंट ऑफ द होम्योपैथिक प्रोफेशनल्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। नेक्स्ट, आयुष ट्रीटमेंट की एलिजिबिलिटी क्या है। आप ही मेडिकल नेसेसिटी के बारे में मैंने बता दिया आपको। आयुष ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉस्पिटलाइजेशन। जितने भी ज्यादा आज की तारीख में आयुर्वेद में हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, उतने कहीं जहां पर होम्योपैथी के में उसमें थोड़ा सा वो पीछे है कि होम्योपैथी में हम कई बार सोचते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कहाँ पर है। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको कवरेज के बारे में बताऊंगा कि हम अगर कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो उसको एडमिशन के लिए या उस हॉस्पिटल को ओपन करने के लिए एक होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिनको कि हमें फुलफिल करना चाहिए, सो दैट कि हम इंश्योरेंस में भी अपने क्लेम को डाल सके, अपने इंश्योरेंस में भी उस क्लेम को यूज कर सके। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर आयुष ट्रीटमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। आपके लिए मैंने ये जो अभी बताया कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है क्लिनिक खोलने की, साथ में एक हॉस्पिटल खोलने की, जिसमें कि आप अपने आप को या अपने ट्रीटमेंट को इंश्योरेंस सेक्टर से भी कंबाइन कर सकते हैं या ज्वाइन करा सकते हैं, जिसमें कि आप इंश्योरेंस से पैसा भी पास लेंगे। आप अपने मरीज को अगर ट्रीट करते हैं तो आप आयुष ट्रीटमेंट देकर के भी आप इंश्योरेंस के अंदर कवर हो सकते हैं। इंश्योरेंस में आपका 20 से 25 हजार तक आयुष ट्रीटमेंट के लिए कवरेज होता है। और आपको उस अपने सेटअप को खोलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो यहाँ जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि आप लाइसेंस प्रैक्टिशनर होने चाहिए। जितने भी मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, दे आर ऑल द लाइसेंस प्रैक्टिशनर। दे कैन ओपन देयर ओन हॉस्पिटल फॉर द सेम। आपका ट्रीटमेंट जो भी आप दे रहे हैं वो वेल वर्स्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। सो whatever treatment you are given, that should be a recognized one from the CCH or any of the government authorities. मेडिकल नेसेसिटी, आपका जो भी ट्रीटमेंट, जैसे आयुर्वेद के लिए तो स्पेशली है, बट इन होम्योपैथी वी आर गिविंग ओनली द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर होम्योपैथी। बट इन आयुर्वेद पंचकर्मा किस जरूरत में दिया जा रहा है या कोई भस्म किस समय पे यूज की जा रही है, दैट मेडिकल नेसेसिटी शुड बी देयर टू टेक द बेनिफिट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। और आप जितना भी बेनिफिट दे रहे हो वो एक सर्टेन पॉलिसी लिमिट के अंदर होना चाहिए। पॉलिसी लिमिट का मतलब आपका जो बेनिफिट है वो आयुष की लिमिट में ही होना चाहिए। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले पिछली कुछ स्लाइडों में बताया कि आपके एक पॉलिसी के अंदर 20 से 25 हजार रुपए तक का ही सम इंश्योर्ड है आज की तारीख में ज्यादातर कंपनियों में, जो आयुष ट्रीटमेंट के लिए कवर है। उससे ज्यादा का ट्रीटमेंट के लिए आप आयुष का ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट, अब क्राइटेरिया क्या है एक आयुष ट्रीटमेंट के सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी इन फ्यूचर आयुष में हॉस्पिटल खोलना है, आप यदि चाहते हो कि मेरा भी एक अस्पताल खुले जिसके अंदर मैं आयुष ट्रीटमेंट को इंश्योरेंस के अंदर कवर करूं, तो उसके कुछ मेन क्राइटेरिया हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, जिनको आपको फोकस करना पड़ेगा व्हाइल यू आर ओपनिंग योर आयुष सेंटर। पहली चीज तो ये कि आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर होने चाहिए। दूसरा,
आपका सेंटर और स्टेट का आयुष हॉस्पिटल आपके जितने भी हैं आजकल वो कवर है। दूसरा, आपके पास आप एक इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए जो कि CCH वगैरह से रिकॉग्नाइज्ड हो। एटलीस्ट 5 इन पेशेंट बेड होने चाहिए जिसमें और सारी की सारी फैसिलिटी जो एक आयुर्वेद या होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, वो 2 मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल होने चाहिए, राइट। एंड आपका हॉस्पिटल में MIS हो, हॉस्पिटल मेंटेनिंग रिकॉर्ड हो, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज हैं जो कि आपको एक अस्पताल के पर्सपेक्टिव से रिक्वायर्ड है अगर आप उसमें अस्पताल खोल करके हेल्थ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट को लेना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। So now the time is whatever I have said, which is related to your career in non-clinical sector. So here, on behalf of Sympathy Institute of Pharmacy, I'll assure you that we will help you to get the job in these non-clinical sectors. So what else I can do for you कि आपके जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप जहां पर भी जो भी काम कर रहे हो, अगर आप वहां से हट करके नॉन क्लिनिकल सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपका जो भी डॉक्टर कांत विल हेल्प यू। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है या कुछ आप चाहते हो चेंज करना या आप अपने सेक्टर्स को बदलना चाहते हो तो हमारे पास वी ऑल्सो हैव सम अपॉर्चुनिटी इन वेरियस इंश्योरेंस कंपनी, NGOs, गवर्नमेंट सेक्टर और इन समवेयर एल्स जहां पर की होम्योपैथिक डॉक्टर्स की आवश्यकता है, आप वहां पर अप्लाई करें और जहां भी संभव प्रयास होगा हम आप लोगों की हेल्प करेंगे टू बिल्ड योर करियर इन नॉन क्लिनिकल सेक्टर। सो ये कुछ साइट्स आपको डाली गई हैं यहाँ पर इस स्लाइड पे, जिन पर भी जाकर के आप अपने लिए नॉन क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज को चेक कर सकते हैं। naukri.com हो गया, मॉन्स्टर्ड हो गया, साइन हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है। इन सारे वेबसाइट्स पर आपके लिए नॉन क्लिनिकल जॉब्स जो भी हैं, आई एम नॉट सेइंग कि क्लिनिकल जॉब यहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर सारी की सारी नॉन क्लिनिकल जॉब्स हैं जहां पर आपको या तो आपकी मेडिकल ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी या आपके मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी या आपकी पब्लिक हेल्थ की डिग्री की जरूरत पड़ेगी या आपकी होम्योपैथिक डिग्री की जरूरत पड़ेगी या होम्योपैथिक प्रोफेशनलिज्म की जरूरत पड़ेगी, वेयर यू हैव टू यूज योर मेडिकल नॉलेज ऑन दैट साइड। आपको मेटेरिया मेडिका की या ड्रग की हो सकता है जरूरत ना पड़े, बट आपको आपके मेडिसिन नॉलेज की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसलिए प्लीज अपने आप को यहाँ और इन वेबसाइट पर रजिस्टर करें या आप अपने जो भी ग्रुप है या समथिंग एल्स, तो वहां पर भी हम टाइम टू टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी डालेंगे एंड यू कैन अप्लाई ऑन दैट ऑल्सो। नेक्स्ट। So it is very important to increase your horizon, to increase your potential, or to understand that homeopathy professionalism is not only for the clinical point of view, it is for the something which is vast and need to explore it. आप सबको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आपको नॉन क्लिनिकल सेक्टर की तरफ भी जाओगे तो देन यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई लॉट ऑफ एंड एम्पल ऑफ द करियर अपॉर्चुनिटी for your growth and for building your good career in that horizon. So don't be focused more on the traditional work that we are doing कि हमारे को सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, फार्मेसी में प्रैक्टिस करना है या फार्मेसी स्टोर खोलना है या MR या लेक्चरशिप. These are the traditional one. You have to focus more on the other horizons so that you can explore yourself as a good or as a big homeopathic professional. Next, please. I think, thank you so much. So now we can take a question if you have any.